صبح سے طبیعت بوجھل تھی. موسم بھی کچھ خاص خوشگوار نہیں تھا. ہوا چل رہی تھی لیکن حبس ہنوز برقرار تھا. نیند بار بار دہلیز پر قدم رکھتی لیکن میں اسے جھڑکنے پر مجبور کرتی کیونکہ صبح ہی صبح ڈھیروں کام میرے سر پر سوار تھے. نیند کی وادی میں گھومتے پھرتے میں نے گھر کے کام جیسے تیسے نپٹائے تھے. دراصل رات کو مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی اور جوائنٹ فیملی میں تو ایسا ناممکن ہی تھا کہ اگر آپ رات کو سو نہ سکے ہوں تو صبح ہی تھوڑی نیند پوری کر لیں. بلکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ کو ہر حال میں صبح اٹھنا ہی پڑتا ہے، چاہے آپ نے ساری رات ہی جاگ کر کیوں نہ گزاری ہو. خیر، اللہ اللہ کر کے میرے آدھے کام مکمل ہو چکے تھے. اب صرف کھانا بنانا باقی تھا. میں جلدی سے یہ کام بھی سر انجام دے کر اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے لیٹنا چاہتی تھی. لیکن میری قسمت میں صرف سوچ ہی سکتی تھی. ساس کو کال آ گئی تھی کہ جیٹ صاحب فیملی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. مجھے سخت کوفت ہوئی تھی. اب بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی 5 دن پہلے تو وہ لوگ آئے تھے اور وہ آتے تھے تو پھر 1-2 دن رکتے بھی تھے. میری زندگی اب اسی کام کے لیے رہ گئی تھی کہ ان کی خاطر تواضع ہی کرتی رہوں. میری جھنجھلاہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا. ان کے ساتھ ان کی 14 سالہ بیٹی بھی آنے والی تھی. وہ مجھ سے کچھ خاص گھلتی ملتی نہیں تھی. باقی سب گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ دوستانہ تھا اور میرے ساتھ اجنبیت کیے ہوئے تھا. میں کوشش کرتی کہ اس سے دوستی کر لوں لیکن وہ مجھے خاطر میں نہ لاتی تھی. ساس صاحبہ کہتی تھی تم اس سے نرمی سے پیش آیا کرو، لیکن میں یہ سوچتی رہتی تھی کہ میں اس سے کب سختی سے پیش آئی ہوں. میں اسے اپنی بہن کی طرح سمجھتی تھی لیکن اس کے مزاج ہی نہیں ملتے تھے. دوسری بات یہ تھی کہ وہ بلا اجازت رات کو میرے کمرے میں ٹھہرتی تھی. اس کی یہ بات مجھے سخت ناگوار گزرتی تھی. میں کئی بار اپنے شوہر سے اس حوالے سے بات کر چکی تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا. یوں لگتا تھا جیسے ان کے ہاتھ پاؤں بھی اسی حوالے سے بندھے ہوئے ہوں. باقی گھر والے بھی اس کی اس حرکت پر خاموش رہتے تھے. مجھے سخت چڑ ہونے لگی تھی لیکن میں خود مجبور تھی. وہ لاڈلی تھی اور لاڈلے دوسروں کو اسی طرح خوار کرتے ہیں. آج بھی یہی ہوا تھا. اب وہ آئی تو سب سے باتیں کر رہی تھی لیکن میری طرف دیکھ کر نگاہیں پھیر لی تھی. میری سمجھ سے باہر تھا اس کا یہ رویہ. خیر، رات کو حسب معمول وہ میرے کمرے میں سونے آ گئی تھی. میں نے اشاروں میں شوہر سے کہا تھا کہ اسے جانے کا کہیں، لیکن بقول ان کے کہیں ان کے بھائی کو برا نہ لگ جائے. مجھے غصہ آ گیا تھا اور اسی غصے میں کمرے میں بنے اسٹڈی روم میں سونے چلی گئی. ایک تو کل رات بھی نیند نہیں آئی تھی، پھر دوپہر کو آرام کا موقع بھی نہیں ملا. اب سونے پر سہاگا جیٹ کی بیٹی کا میرے کمرے میں سونا. میں شدید فرسٹریٹ ہو گئی، اسی لیے دوسرے کمرے میں چلی آئی تھی. یہاں پر بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. اب اگر میں یہاں بھی ساری رات آنکھوں میں کاٹ دیتی تو صبح وہی کاموں کا ڈھیر میرا انتظار کرتا. مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق میں اپنے کمرے میں چلی آئی تھی. اب تک تو وہ چڑیل سو چکی ہوگی. میں نے دل ہی دل میں اسے چڑیل کہا تھا. جیسے ہی میں اسٹڈی روم سے کمرے کی طرف آئی مجھے لگا میری روح میرا ساتھ چھوڑ چکی ہے. میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی. سامنے کا منظر انتہائی دردناک تھا جو میں بیان کرنے سے بھی قاصر تھی. میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی. میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا. اس کی بھی ایک وجہ تھی اور وجہ یہ تھی کہ میرے والدین میں میری پیدائش کے چند سالوں بعد ہی علیحدگی ہو گئی تھی. بقول نانی کے یہ ان کی محبت کی شادی تھی، لیکن ایسی محبت جو اپنے ساتھ 2 ٹوٹے دلوں کی بددعا لے کر گھومتی رہتی تھی. یہی وجہ تھی کہ زیادہ دیر نہ چل سکی اور دھڑام سے زمین بوس ہو گئی. امی کا رشتہ چچا کے بیٹے سے ہوا تھا اور ابو کا رشتہ امی کی نند سے یعنی چچا کی بیٹی سے. لیکن ابو نے امی کو پسند کر لیا تھا اور یوں جڑے رشتے ٹوٹے تھے تو 2 دل بھی ٹوٹے تھے. اماں کی ہونے والی نند کو بہت دکھ ہوا تھا کہ میرے ابو نے ان کے ساتھ کیا عجیب مذاق کیا تھا. امی کے چچا کے بیٹے تو فوراً پیچھے ہٹ گئے
لیکن امی کی سابقہ نند اس بات کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے ابو کو بہت واسطے دیے تھے کہ وہ اسے نہ چھوڑیں، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ ابو نے امی سے سب کی مخالفت مول کر شادی تو کر لی تھی، لیکن پھر ان کی زندگی سے سکون غائب ہو گیا تھا۔ انہوں نے کسی کو بے سکون کیا تھا، شاید اسی وجہ سے ان کی محبت انہیں راس نہیں آئی تھی۔ شاید نند کی آہ ان کا پیچھا کر رہی تھی اور ان میں علیحدگی کروا کر ہی چھوڑی تھی۔ کبھی کبھی نانی اماں مجھے یہ کہانی سناتی تھی تو میں ان سب میں اپنا قصور ڈھونڈا کرتی تھی کہ میرا یعنی سمرا کا اس میں کیا قصور تھا کہ اسے بچپن میں ہی بن ماں باپ کے رہنا پڑا تھا۔ میری پیدائش میرا قصور بن گئی تھی اور میں اکثر سوچا کرتی کہ انہوں نے صرف اپنا سوچا تھا۔ دونوں نے رضامندی سے علیحدگی کر لی تھی اور میرا سوچنا کسی نے بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس چیز نے مجھے بچپن سے ہی شدید حساس بنا دیا تھا۔ والدین میں علیحدگی کے بعد مجھے نانا نانی نے پالا تھا اور بھائی کے روپ میں ماموں کو دیکھا تھا جو مجھ سے محض 4 سال ہی بڑے تھے۔ مجھے وہاں کوئی مشکل یا کسی بھی قسم کی مشکل یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ مجھے وہاں بالکل بیٹیوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا۔ امی نے ان کی نافرمانی کی تھی، لیکن انہوں نے ان کی سزا مجھے نہیں دی تھی۔ امی علیحدگی کے بعد اپنے ماموں کے پاس بیرون ملک چلی گئی تھی اور وہیں اپنا کیریئر دوبارہ شروع کیا تھا، جبکہ ابو نے حیرت انگیز طور پر امی کی اسی سابقہ نند سے دوبارہ شادی کر لی تھی۔ وہ اب بھی ان سے محبت کرتی تھی۔ اسی چیز نے ابو کو ان کی طرف راغب کیا تھا۔ بس میں ہی تھی جس کا پیدا ہونا فضول ٹھہرا تھا۔ میں اب 20 برس کی ہو چکی تھی، لیکن دونوں میں سے کسی نے اپنی اولاد کو ان 20 سالوں میں مڑ کر بھی نہ پوچھا تھا۔ وقتی اٹریکشن نے دونوں سے اتنا بڑا فیصلہ کروا لیا تھا، جس کا خمیازہ میں اپنی ذات میں پیدا ہونے والے خلا سے بھگت رہی تھی۔ زندگی عجیب شے ہے، یہ آپ کو ایسے راستوں پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں سارے راستے بند نظر آتے ہیں۔ میں سمجھتی تھی یہی میری زندگی کا امتحان ہے، لیکن سمرا مقبول کو ابھی اور امتحانوں سے گزرنا تھا۔ وہ میری گھات لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور میں بے خبر تھی۔ میں نے انٹر امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا تھا اور اب اماں یعنی میری نانی کو میری شادی کی فکر ستانے لگی تھی۔ میں انہیں اماں اور ماموں کو بھیا کہتی تھی اور کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ اصل میں میرا ان سے کیا تعلق ہے۔ اماں جب بھی مجھ سے شادی کی بات کرتی میں فوراً سے رفو چکر ہو جاتی، مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی۔ کبھی کبھی ساری رات ایسے ہی آنکھوں میں کٹ جاتی، پھر دوبارہ نارمل ہونے میں مجھے 2 دن لگتے۔ میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ شادی میرے والدین کی شادی جیسی ہوتی ہے جو تھوڑے ہی عرصے میں ٹوٹ جاتی ہے۔ میری گھبراہٹ کی بھی یہی وجہ تھی۔ یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی تھی، صرف خود تک محدود رکھی تھی۔ ایک بار میں کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے اماں نے آ کر اطلاع دی کہ کوئی مجھ سے ملنے آیا ہے۔ میں باہر آ گئی اور صوفے پر بیٹھی گریس فل لیڈی کو ستائشی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، لیکن ان کی شخصیت نے مجھ پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا۔ میں تھوڑا حیران ہوئی، لیکن جب انہوں نے میری بیٹی کہہ کر بلایا تھا تب مجھے پتا چلا کہ وہ کون تھی، اور وہ مجھے جنم دینے والی عورت تھی۔ ان کا یہاں آنے کا مقصد میری شادی اپنی کلیگ کے بیٹے سے کروانے کا تھا۔ مجھے ان سے سخت نفرت محسوس ہوئی۔ مجھے لگا تھا میرا دل پھٹ جائے گا اور سالوں کا غبار ایک ساتھ بہہ نکلے گا، لیکن میں نے ضبط کیا تھا۔ اتنے سالوں بعد میری یاد بھی آئی تو اس لیے میں اسی وقت وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں بے آواز زاروں قطار رو رہی تھی، اور جب تک وہ وہاں تھی میں باہر نہیں آئی تھی۔ وہ مایوس ہو کر لوٹ گئی تھی۔ اماں نے مجھ سے آ کر ہمدردی کی اور اسی وقت میں نے ان سے کہہ دیا کہ وہ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، میں اف تک نہیں کروں گی، لیکن میں شیزا یعنی امی کی پسند سے ہرگز نہیں کروں گی۔ اماں میری بات سمجھ چکی تھی، لہٰذا کوئی بھی سوال کیے بغیر لوٹ گئیں، اور اس رات میں بہت روئی۔
यहाँ तक कि आधे सर के दर्द ने मेरे जिस्म का रास्ता देख लिया था। कोई इंसान इतना बेहिस कैसे हो सकता है? वहाँ से अब्बू की तरफ से भी अम्मा पर दबाव डाला जा रहा था कि अब समरा की शादी कर दी जाए। ये सोचे बगैर कि मेरे वालिदैन ने मेरे सामने अपनी शादी की कौन सी अच्छी मिसाल कायम की थी, जो मैं अपने जहन को शादी के लिए मस्बत तौर पर तैयार कर सकूं। कभी कभी वालिदैन सिर्फ फैसला सादिर कर देते हैं, ये जाने बगैर कि औलाद क्या चाहती है, और वालिदैन भी ऐसे हों जैसे मेरे थे, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। मेरे नज़दीक अगर किसी को मेरी ज़िंदगी से मुतल्लिक फ़ैसला करने का हक़ था, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी नानी यानी मेरी अम्मा का था, और मैंने उन्हें ही ये फ़ैसला करने का इख्तियार दिया हुआ था। बाकी मुझे किसी और से कोई सरोकार नहीं था। अम्मा ने फ़ैसला कर लिया था, और मेरे कहने के मुताबिक मेरे वालिदैन के इल्म में लाए बगैर मेरे लिए मुनासिब रिश्ता तलाश कर लिया। मेरा रिश्ता अम्मा ने दूर परे के रिश्तेदार से तय कर दिया था। मेरे ससुराल में मेरे जेठ जेठानी, एक शादीशुदा नंद और एक कंवारी नंद थी। मेरे शौहर सबसे छोटे थे। मैंने अम्मा से रिश्ते की बाबत कुछ नहीं पूछा था। मैं पूछ कर करती भी क्या? मेरे वालिदैन मेरे लिए ऐसी मिसाल छोड़ गए थे कि मुझे शादी जैसे नाम से खौफ आता था। लेकिन मेरी अपनी अना इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला मैं उन्हें करने दूं। लिहाजा मैंने नानी को इख्तियार दे दिया। वो जो करेंगी मेरे लिए बेहतर ही करेंगी। शादी से पहले मेरे ससुराल वालों ने मेरी दावत की थी, और मेरे लाख मना करने के बावजूद भी अम्मा ने मुझे ज़बरदस्ती वहाँ भेज दिया था। मैं तो वहाँ किसी को जानती तक नहीं थी, ना मैं मोबाइल से किसी से बात करती थी। मुझे वहाँ बहुत अजनबी सा महसूस हो रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे अजनबी महसूस नहीं होने दिया। मेरी शादीशुदा नंद, कंवारी नंद सब मुझसे बातें कर रहे थे। मेरी जेठानी भी मुझे अच्छे मिजाज की मालूम हुई थी, लेकिन एक चीज़ थी जो मुझे खटक रही थी। वो थी जेठानी की बेटी, जो कि 14 बरस की थी। उससे मेरे शौहर के बारे में हर बात का इल्म था। उनकी आदत कैसी है, वो क्या पसंद करते हैं, उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है, वो हर चीज़ मुझे बता रही थी। और मैंने नोट किया था कि उसका लहजा बहुत ही ज़्यादा अजीब था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि 14 बरस की लड़की को कैसे इतना कुछ मालूम हो सकता है। मेरे शौहर चूँकि सबसे छोटे थे, तो जेठ की बेटी में और शौहर की उम्र में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, यानी मुश्किल से 8-9 साल का फ़र्क होगा। लेकिन फिर भी उसे अपने चाचू के बारे में इतना कैसे मालूम था? मैं थोड़ी हैरान रह गई थी। मेरी शादीशुदा नंद ने जब देखा कि वो मुझे चाचू के बारे में सब बता रही है, तो वो हंस पड़ी और कहा, ये तुम्हारे शौहर की सबसे ज़्यादा अच्छी दोस्त है, यानी ये लोग बेस्ट फ्रेंड हैं। यही वजह है कि तुम्हें सब बता रही है, ताकि तुम जब शादी करके आओ तो तुम्हें अपने शौहर के बारे में सब मालूम हो। मैं मुस्कुरा दी थी। अब उसके अलावा मैं और क्या कह सकती थी? उसकी भतीजी थी और उन सबसे ज़्यादा क्लोज थी कि वो बहन भाई ही लगते थे। नहीं लगता था कि वो 13 बरस की बच्ची उनकी भतीजी है। मैं खामोश हो गई थी। मैं मज़ीद क्या कहती कि अभी तो मेरी शादी नहीं हुई। वहाँ अच्छा दिन गुजरा और मैं घर आ गई थी, लेकिन वो बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने सोचा मैं अम्मा को ये बात बताऊं, लेकिन फिर मैंने खुद को ये तसल्ली दी कि वो उनकी भतीजी है, वो उनसे इतना क्लोज है, तो उसमें मेरा क्यों इतना दिल जल रहा है? मैं क्यों इतना परेशान हो रही हूँ? मैंने खुद को दिलासा दिया कि मुझे अभी से उससे हसद नहीं करना चाहिए। शायद मैं उससे हसद करने लगी थी कि मुझे अपने शौहर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और उसे सब कुछ मालूम था, जिसका साफ मतलब तो ये पता चलता था कि अब मुझे फर्क पड़ने लगा है। यानी अब मैं थोड़ी थोड़ी दिलचस्पी लेने लगी थी अपने होने वाले शौहर में। मेरा इंटर का रिजल्ट आ गया था और मैं इम्तियाजी नंबरों से कामयाब हो गई थी। अब मैं आगे पढ़ना चाहती थी और मैंने इस सिलसिले में अम्मा से बात की थी, लेकिन अम्मा ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा कि ससुराल वाले मेरी शादी जल्द अज जल्द करना चाहते हैं, लिहाजा अगर मैं एडमिशन ले भी लेती हूँ तो फिर मुझे अधूरा छोड़ना पड़ेगा।
कि पता नहीं वो लोग आगे पढ़ने की इजाज़त दे भी या ना दे। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई। मैं तो पढ़ना चाहती थी, अपना कैरियर बनाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से वालिदैन की जिद में आकर मैंने अम्मा को रिश्ते की इजाज़त दे दी थी। कभी कभी मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी की रस्सी दूसरों के हाथों में है, और जब उनके हाथ खींचने लगते हैं और मेरा दम घुटने लगता है तो मैं फरार हासिल करना चाहती हूँ। खैर, मुझे दुख तो बहुत हुआ था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मैंने अम्मा की बात मान ली, लेकिन मैं फिर फारिग बैठने वाली नहीं थी। मैंने सोचा मैं सिलाई कढ़ाई सीख लेती हूँ, थोड़ा वक्त तो यूँ निकाल लूँगी कि थोड़ी बहुत तो पढ़ाई कर ली थी और थोड़ा बहुत हुनर भी मुझे आ जाएगा, जो आगे अगर कोई भी मसला पेश आता है तो मेरे पास कम से कम हुनर तो मौजूद हो। ये बात मैंने खुद को समझाई। मैंने बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं पाली थी इस शादी से, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा तवक्कुआत इंसान को ले डूबती हैं, और यही वजह थी कि मैं अभी से खुद को मजबूत बना रही थी। मेरे नज़दीक शादी एक बहुत बड़ा जुआ है ज़िंदगी का, जिसमें अगर जीत गए तो ज़िंदगी संवर गई और हार गए तो ज़िंदगी तबाह हो जाती है। मैंने अपनी तरफ से उस जुए के खेलने का आगाज़ कर दिया था। 2 महीने का वक्त मांगा गया था और फिर मुझे पिया देश सुधार जाना था। अम्मा मेरे लिए पहले से ही जहेज जमा कर चुकी थी, लिहाजा शादी की चंद एक तैयारियों के लिए उन्होंने 2 महीने की मोहलत मांग ली थी। और यूं पूरे 2 महीने बाद मैं समरा मकबूल से समरा शायान बन गई थी। मेरी शादी की पहली रात थी और मेरे कमरे में मेरे साथ जेठ की बेटी सारा मौजूद थी। उसकी आंखों से अजीब सी वहशत हो रही थी, बिल्कुल चुपचाप यक तक मुझे देख रही थी, जैसे अपने अंदर दिमाग में बहुत सी कैलकुलेशन कर रही हो। मैं उसके इस रवैये से परेशान हो रही थी। पहली रात की दुल्हन थी, किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं थी, और फिर सारा का रवैया ही इतना रूड होता था कि बात करने से पहले सोचना पड़ता था। हालांकि उसकी बदौलत मुझे शायान की बहुत सी आदतों का पता लग गया था, लेकिन आज उसका अजनबी रूप कोई और ही कहानी सुना रहा था। इतने में दरवाज़ा खुला और शायान अंदर दाखिल हुए। मैंने बैक वक्त सारा को देखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। दरवाज़ा खुलते ही वो फौरन दरवाजे की जानिब गई और शायान को कंधों से पकड़कर बेड पर बिठाकर फौरन से यह सवाल किया कि मुझे सबसे पहले मुंह दिखाई दिखाइएगा कि आपने समरा को क्या मुंह दिखाई देनी है। उसकी बात सुनकर तो जैसे मुझे हैरत का झटका लगा। उसने चाची कहने की बजाय मुझे समरा के नाम से बुलाया था, और दूसरा उसने जो दरख्वास्त की थी उसे सुनकर तो किसी भी नॉर्मल इंसान का दिमाग घूम सकता था। मुंह दिखाई तो ऐसा तोहफा होता है जो सिर्फ शौहर को ही मालूम होता है, और फिर उसे दुल्हन को देख कर दिया जाता है। लेकिन वो जिस तरह रोब और धौंस से मुंह दिखाई दिखाने का मुतालबा कर रही थी वो बिल्कुल अजीब ही था। मेरे अंदर झक्कड़ से चल रहे थे कि ये क्या हो रहा है। कोई इतना ज़्यादा कैसे अपने चाचा से फ्री हो सकता है कि एक तो पहली रात ही उनके कमरे में मौजूद हो और फिर इस तरह का मुतालबा करना। मुझे सख्त नागवार गुजरा था। यानी शादी के पहले ही दिन मुझे अपनी इस कैफियत पर काबू पाना पड़ा। मैंने शायान का चेहरा देखा, वो हंस रही थी, यानी उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगा। अब मुझे और ज़्यादा बुरा लगा था। वो उसे डांट कर कमरे से भेज भी तो सकते थे। ऐसी भी क्या दोस्ती कि एक मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान बोलने की इजाज़त मिल जाए। मैंने जैसे तैसे करके खुद को काबू किया और खुद को अनजान जाहिर करने की कोशिश की, जैसे मैं उन दोनों की गुफ्तगू सुन ही नहीं रही। लेकिन इन कानों का क्या करूं जो अल्लाह ने मुझे तोहफे में दिए हैं, जिनसे उन आवाज़ों को सुना जा सकता है जो आपको तकलीफ देती हैं। शायान ने मुझसे पहले सारा को गिफ्ट दिखा दिया, और इस तरह दिखाया था कि मैं वो गिफ्ट नहीं देख पाई थी, कि मुझे तो वो मिल ही जाना था। लेकिन उसके बाद भी सारा कमरे से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी कमर बेड पर बैठ बैठ कर दुख गई थी और मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती थी।
लेकिन सामने वाले को भी तो इस बात का एहसास होना चाहिए। सारा किसी ढीठ इंसान की तरह तकरीबन 1 घंटा वहां बैठकर शायान से गप्पे मार रही थी। उन दोनों ने तो ये भुला ही दिया था कि कोई तीसरा शख्स भी कमरे में मौजूद है। अब मेरा दिल ऐसा लग रहा था किसी ने जलते तवे पर रख दिया हो और वो जल जलकर स्याह हो रहा था। मेरा तो इस घर में पहला दिन था, तो नाराज भी नहीं हो सकती थी और ना ही शायान से कोई शिकवा कर सकती थी कि वो अपनी दुल्हन को नज़रअंदाज करके कैसे किसी दूसरे इंसान के साथ देर तक गप्पे मार सकता है जो उसी के साथ उसी के घर में रहता है। तो वो किसी और वक्त भी उससे सब बातें कर सकता है। इतने अहम दिन उसे यही वक्त मिला था उससे गप्पे मारने का। बिलाखिर मुझे ही खंगार कर पानी का मुतालबा करना पड़ा और शायद सारा को कुछ शर्म आ गई थी। वो उठकर बाहर चली गई और धड़ाम से दरवाज़ा बंद किया। इस बात को मैंने और शायान दोनों ने महसूस किया था। मेरा तो मूड इंतहाई ख़राब हो चुका था, लेकिन ज़िंदगी ने पहला सबक ही बर्दाश्त का पढ़ाया था, तो ये भी कड़वा घूंट समझकर पी गई थी। बातों बातों में शायान ने मुझे बताया था कि सारा उसकी बचपन की दोस्त है, यानी उन दोनों में उम्र का फ़र्क कम है, तो वो दोनों एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त हैं। लिहाजा वो इसी तरह रात को देर तक बैठकर उससे बातें करती रहती है और ये बिल्कुल एक आम बात है। लिहाजा मुझे भी इसका आदी हो जाना चाहिए। और मैंने शायान को यूं देखा था जैसे उसका दिमाग चल गया हो। बीवी के आने के बाद तो एक दोस्त का दर्जा नीचे ही हो जाना चाहिए और बीवी आपकी पहली तरजीह होनी चाहिए, बीवी भी वो जो पहली रात की दुल्हन है। लेकिन शायान के मुंह से ये बात सुनकर मेरा दिल चाहा कि मैं धाड़े मार मार कर रोऊं, लेकिन मैं सब्र का घूंट पीकर रह गई थी। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी और ना ही मैं किसी को बता सकती थी। अम्मा को तो मैंने बिल्कुल भी बताने का नहीं सोचा था। मेरे अंदर दूर कहीं ये खौफ कुंडली मारे बैठा था कि कहीं मुझे भी मेरी माँ का ताना ही न दिया जाए। लिहाजा मैंने अपनी ज़बान को सिलाई कर लिया था कि ये सिर्फ काम के वक्त ही खुल सकेगी। अगली सुबह भी कुछ ज़्यादा खुशगवार न थी। वैसे ही रात को देर से रुखसती हुई थी, तो सोते सोते तो सुबह ही हो गई थी और अभी सुबह के 10 भी ना बचे थे कि दरवाजे पर जोर जोर से किसी ने दस्तक देकर गहरी नींद से अचानक उठा दिया। मैंने घड़ी में टाइम देखा कि कहीं बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं हो गया, लेकिन घड़ी तो सिर्फ 10 बजा रही थी। मुझे चारों नाचार दरवाज़ा खोलने के लिए उठना पड़ा, क्योंकि शायान तो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो रहे थे कि इतनी ज़्यादा शोर की दस्तक भी उनके नींद का कुछ ना बिगाड़ सकी। सामने सारा खड़ी थी। मैंने कुछ भी ना कहा, सिर्फ सवालिया अंदाज में आईब्रो उठा दिए। उसने मुझे देखते ही पूछा कि शायान जाग गए हैं, और शायान के नाम के साथ चाचू ना लगा देखकर मुझे सख्त हैरत हुई थी। मैंने रूखी आवाज़ में कहा कि सो रही हैं, जिस पर उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का देकर अंदर झांका और फिर मुझे देखकर कहा कि देखना, अब मैं ऐसे कैसे उठाती हूँ, मेरी एक आवाज़ पर ये उठ जाएंगे। वैसे भी इन्होंने मुझसे वादा किया था कि शादी की सुबह मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगे। मेरा दिल चाहता था कि मैं अभी इसी वक्त सब कुछ छोड़कर अपने घर वापस चली जाऊं। मेरे साथ तो शायद जिंदगी ने पहली ही रात को मजाक किया था और मुसलसल मजाक किए चली जा रही थी और मैं चुपचाप बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। क्या कोई इतना बेहिस हो सकता है कि अपने बच्चे को ये तालीम ना दे सके कि नई नवेली दुल्हन के कमरे में बगैर इजाज़त के नहीं जाते? और वाकई उसने सही कहा था। सारा की एक आवाज़ पर शायान उठ बैठे थे। सारा कमरे से निकल गई, शायान को अपना वादा याद दिलाकर, और शायान तैयार होने चले गए, मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज करके। और मैं हक्का बक्का पलंग पर बैठी रह गई थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर में सब सो रहे हों और सिर्फ वही जाग कर कमरे में आई हूँ, क्योंकि बाहर से मुझे किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। वो दोनों चले गए थे और इस दौरान शायान ने मुझसे एक भी बात नहीं कही थी, बल्कि कुछ बात ही नहीं कही थी, ना ही मेरी तरफ देखा था। मेरे आंसू निकल पड़े। आखिर कोई कितना बर्दाश्त करे।
वो भी शादी की एक ही रात में इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकता है। मैंने सोच लिया था कि मैं अम्मा को जाकर सब बताऊंगी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी कि मेरे दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई और दरवाज़ा तो वैसे भी खुला ही हुआ था। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे थे। मेरी सास अंदर आई और मुझे यूं बैठा देखकर शायान की तलाश में नजरें दौड़ाईं और फिर सवालिया अंदाज में मेरी तरफ देखा। मैंने उन्हें बताया कि सारा आई थी, वो दोनों आइसक्रीम खाने गए हुए हैं। और मेरी सास के माथे पर एक साथ बहुत से बल नमूदार हुए। उन्होंने मुझे तैयार होने का कहा और कड़े तेवर लिए वो दरवाजे से बाहर निकल गई। मुझे नहीं पता था कि वो बाहर जाकर क्या कहने वाली थी, क्योंकि कोई भी सुनता तो उसे ये बात बहुत ही अजीब लगती कि नई नवेली दुल्हन को छोड़कर सारा के साथ आइसक्रीम खाने गए हुए हैं। क्या कोई अपनी भतीजी से इस कदर भी मोहब्बत कर सकता है? मैंने खुद से सवाल किया था। बाहर से मुझे एक साथ बहुत से शोर की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन जाहिर है मैं कैसे जा सकती थी जब तो कोई मुझे दोबारा कमरे से लेने नहीं आता। मेरी सुबह जल्दी चाय पीने की आदत थी और उस वक्त तक तो मुझे चाय भी नहीं मिली थी। अब घड़ी भी 12 बजा रही थी। मेरी चाय की तलब में इजाफा होता जा रहा था, लेकिन बाहर होने वाले शोर ने मुझे अंदर ही बैठने पर मजबूर किया था। थोड़ी देर बाद मेरी शादीशुदा नंद आई। उसका चेहरा देखकर मुझे यूं ही महसूस हुआ जैसे उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट का मास्क चढ़ाया हुआ है। उसने मुझे चाय पिलाई और नाश्ता करवाया। मैंने चुपचाप नाश्ता कर लिया। शायान का मैंने भी नहीं पूछा था। जब उसे मेरी परवाह नहीं थी तो मैं क्यों उसकी परवाह करूं? ये मैंने खुद को कहा था। मेरी नंद ने मुझे बताया कि मेरी अम्मा मुझे लेने के लिए आने वाली हैं, चुनाचा मैं अपना सामान रेडी कर लूं। मैंने सवालिया नजरें उठाकर उनसे शायान का पूछा, क्योंकि रिवाज तो यही था कि शौहर भी बीवी के साथ उसके मैके छोड़ने जाता है। वो अभी आता ही होगा तो तुम्हारे साथ चलता है। वो तो सारा के साथ आइसक्रीम खाने गए हुए हैं। मेरी जबान से बिल आखिर निकल ही गया। हाँ, बस आता ही होगा। सारा भी ना बिल्कुल बच्ची की बच्ची ही है। मुझे यूं लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी खजालत छुपाई थी। खैर, मैं तैयार हो गई और नीचे आ गई। अम्मा मेरा इंतजार कर रही थी। अब मैं उनके साथ उनके घर वापस आ गई थी। वापस आकर एक आज़ादी का एहसास हुआ और मैंने सुकून का सांस लिया। लेकिन मैंने अम्मा को कुछ भी ना बताया। मैं खुद को और इस रिश्ते को थोड़ा वक्त देना चाहती थी। रात को बिलाखिर शायान मुझे लेने आ गए थे। कमरे में आते ही उन्होंने मुझसे माजरत की कि वो मुझे बताए बगैर यूं सारा के साथ आइसक्रीम खाने चले गए। मैंने कुछ भी नहीं कहा। मुझे घर में खामोशी ज़रूर महसूस हो रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं आऊं और सारा मेरे कमरे में दाखिल ना हो? जिस पर वो शायान ने मेरी आंखों में इस सवाल को पहचान लिया और उसने कहा था कि जेठ और जेठानी अब अलग रहेंगे, क्योंकि हमारी शादी के वक्त ये बात तय हो गई थी कि घर में अब इनको अलग होना पड़ेगा। लिहाजा मेरे वालिदैन ने उन्हें अलग कर दिया है और सारा उन्हीं की औलाद है तो उनके साथ ही रहेगी। इसलिए अब सारा यहाँ नहीं होगी। और ये सब सुनते ही मेरे दिलो दिमाग को राहत पहुँची थी। मुझे एकदम से आज़ादी का एहसास हुआ। मुझे अपने फैसले पर खुशी हुई कि मैंने अम्मा को कुछ भी नहीं बताया और मेरा ये फैसला अच्छा साबित हुआ। अब आहिस्ता आहिस्ता शायान और मुझ में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मेरी शादी को तकरीबन 2 महीने होने वाले थे और हम दोनों में खूब बनती थी। हम दोनों में प्यार मोहब्बत भी मिसाली था। शादी के पूरे 2 महीने बाद जेठ और जेठानी हमारे घर आए। जेठ और जेठानी तो शाम तक हमारे घर रुके रहे और खाना अच्छे माहौल में खाया गया। सारा भी मुझे चुप चुप सी नजर आ रही थी। वो पहले जैसी खुशी उसके चेहरे पर मुझे नहीं मिल रही थी। बातें भी बहुत कम कर रही थी और मुझे तो ऐसी नजरों से घूर कर देख रही थी कि मुझे अजीब सी वहशत हो रही थी उससे। लिहाजा मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। रात को जेठ जेठानी तो चले गए, लेकिन सारा वहीं ठहर गई थी और उसके ठहरने से मैं आरामदेह महसूस नहीं कर रही थी।
क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये दोबारा हमारे कमरे में ना आ जाए। और शादी के शुरुआत के दिन थे, तो मैं कोई तनाज़ा नहीं चाहती थी। वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो सोई तो सास के पास थी, लेकिन सास के सोने के बाद वो हमारे कमरे में चली आई और खुद ही अच्छे मूड में हम दोनों से बातें करने लगी। वो इतनी ज़्यादा बेमकसद बातें कर रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों इतनी बेतुकी बातें कर रही है। मुझे नींद आने लगी थी। अब मैं चारों नाचार वहीं सो गई। वो दोनों सोफे पर बैठकर पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे और मैं पलंग पर नींद में बेसुध हो चुकी थी। अगले दिन वो अपने घर चली गई, लेकिन जब मेरी सास को पता चला कि वो रात को मेरे कमरे में ही सो गई थी, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था, हालांकि उन्होंने बातों से तो कुछ ऐसा जाहिर ना किया था, लेकिन मैं समझ गई थी कि उन्हें अच्छा नहीं लगा। मैंने शायान से बात की कि आखिर सारा क्यों आपसे इतनी ज़्यादा अटैच है। वो मेरी इस बात से चिढ़ गई। उन्होंने कहा कि तुम्हें 1000 बार बताया है कि वो मेरी भतीजी है और मेरी हम उम्र भी, इसीलिए वो मुझसे ज़्यादा अटैच है। उनका गुस्सा देखकर मैंने इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया। ये पहली दफ़ा था कि वो हमारे कमरे में ठहरी थी, इसलिए मैंने इस बात को रफा दफा कर दिया। मैं अपने रिश्ते पर कोई आंच नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप को भी तो समझना चाहिए था कि उसे किस किस्म की तरबियत दे रहे हैं। अभी थोड़े ही दिन गुजरे थे कि वो फिर अपने माँ बाप के साथ हमारे घर आ गई। मैंने नोट किया था कि सास को मेरे जेठ जेठानी के आने से कोई मसला नहीं था। वो उनसे वैसे ही प्यार मोहब्बत से बात करती थी, लेकिन सारा से वो भी ज़रा खिची खिची सी रहती थी। अभी हम सब अच्छे माहौल में बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक सारा ने मेरी तरफ उंगली की और कहा कि मैं आपसे बेहद नफरत करती हूँ, क्योंकि आपने मुझसे मेरी मोहब्बत को छीन लिया है। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा बुरा महसूस हुआ था कि मैंने फौरन ही शायान को देखा था। उनकी रंगत भी मुझे उड़ी हुई महसूस हुई, यूं जैसे चोरी पकड़ी गई हो। मैं फौरन वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई और उन सबको इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी कि मुझे सारा की बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी है। लेकिन मुझे अपने घर वाले भी थोड़े पुरस्कार से मालूम हुए कि किसी ने इस बात को महसूस ही नहीं किया था कि मैं वहाँ से अपने कमरे में आ गई हूँ। शायान जैसे ही कमरे में आए तो मैंने आज बोलना अपना हक समझा था। उन्हें कह दिया था कि मुझे सारा की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आखिर आप दोनों में ऐसा क्या ताल्लुक है कि वो इस तरह से बात करती है मुझसे और मेरी ज़रा भी इज्जत नहीं करती। और मैंने आज उन्हें वार्निंग दी थी कि आज सारा मेरे कमरे में नहीं सोनी चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो आज भी रुकने आई है और आज भी शायद वो हमारे ही कमरे में ठहरने का प्रोग्राम बनाएगी, जिस पर शायान की सर पर त्योरी चढ़ गई थी। और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं मजबूर हूँ, मेरे भाई की पहली और आखिरी औलाद है और मैं उसे कुछ भी नहीं कह सकता, और अगर वो मुझसे इतना करीब है तो तुम्हें क्यों इतना मसला होता है। उनकी बात से मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और अब मैंने अम्मा से बात करने का फैसला कर लिया। आज तो मैं नहीं जा सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज सारा हमारे ही कमरे में ठहरने आएगी। और वही हुआ, मेरी सास के सोते ही वो हमारे कमरे में आ गई। इसलिए मैं गुस्से में पाँव पटक कर स्टडी रूम में चली गई, क्योंकि सुबह से मेरी तबीयत सुस्त थी और मुझे चक्कर भी आ रहे थे। मेरी रात को भी नींद ठीक से पूरी नहीं हो पाई थी। जैसे जैसे मैंने काम निपटाया तो उनकी फैमिली हमारे घर आ गई। अब उनसे हंस बोलकर मिलकर कमरे में आराम करने का मौका रात को ही मिल पाया था। मैं उन दोनों को वहीं छोड़कर स्टडी रूम में आ गई थी कि मैं इन दोनों से मगजमारी नहीं करना चाहती। मेरे सर में वैसे ही दर्द था, लेकिन मैं क्या करती। मेरी जगह तो पलंग पर थी और मुझे अपनी जगह पर ही नींद आती थी। स्टडी रूम में भी मैं सिर्फ करवटें ही बदल रही थी। मैं दोबारा अपने कमरे में सोने के लिए आई और सामने का मंजर देखकर मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मुझे अपनी बसारत पर यकीन नहीं आया था कि जो मैं देख रही हूँ वो हकीकत है। मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी कि ये एक ख्वाब हो, लेकिन वो
मुजस्सिम हकीकत थी जो मेरे सामने खड़ी हुई थी। मेरे शौहर नींद की गहरी वादी में खो चुके थे और सारा वो जाग रही थी। मेरे शौहर के बिल्कुल करीब बैठे उनके चेहरे से बालों को हटाकर उनके बालों में उंगलियां फेर रही थी और मैं इतनी सी बच्ची की इतनी बड़ी जुर्रत देकर हैरान रह गई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था कि मैं ये सब कुछ देख रही हूँ। मेरे वहाँ आने पर वो खजल सी मुस्कुराई और कहा कि चाचू को ऐसे ही नींद आती है, तो उन्होंने मुझे ऐसा करने को कहा और मेरा दिल चाहा कि मैं उसका मुंह नोच लूं। वो मुस्कुराकर ये कहकर वहाँ से चली गई, लेकिन मेरे दिल में बहुत सारी बदगुमानियों को जगह दे गई। आखिर वो क्या चाहती थी? वो अपने चाचू के साथ ये सब कुछ क्यों कर रही थी? और उन दोनों का इतना क्लोज रिलेशन मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आता था। क्या बाकी घर वाले अंधे थे? उन्हें कुछ नजर नहीं आता था और मुझे इस मामले को पता लगाना ही था। मैंने अपने शौहर को कुछ भी नहीं कहा और अम्मा को सब बता दिया। अम्मा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, लेकिन उन्होंने मुझे एक राज सुझाई थी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ था जैसे इस घर में मुझसे कुछ छुपाया गया है। मैंने अम्मा के कहने पर अपनी गैर शादीशुदा नंद से सारा के बारे में पूछा और साथ ही साथ ये भी पूछा कि जेठ जेठानी की दूसरी औलाद क्यों नहीं है। उसने मुझे बताया कि सारा उनकी सगी औलाद नहीं, बल्कि जेठानी ने उसे अपनी बहन से गोद लिया है, क्योंकि उनकी पहले से ही 5 बेटियां थीं और छठी बेटी की पैदाइश के बाद जेठानी का पहले से इरादा था कि वो इस बच्ची को गोद ले लेंगे। लेकिन अम्मा नहीं मान रही थी और अम्मा मानी तो वो तब तक 10 साल की हो चुकी थी। अब मुझे सारा की हरकतें समझ में आने लगी। यानी ये मुझसे छुपाया गया था कि सारा जेठानी की सगी औलाद नहीं है और शायान ने भी मुझे ये बात नहीं बताई थी। शायान जब रात को घर वापस आए तो मैंने उनसे इस मोहब्बत से सवाल किया। उन्होंने भी वही कहा जो मेरी गैर शादीशुदा नंद ने मुझे कहा था। अब तो मुझ पर खतरे की घंटी और ज्यादा बजने लगी। ये दोनों एक दूसरे के लिए महरम नहीं थे और ना ही शायान उसके सगे चचा थे। रात वाला मंजर मेरे दिमाग में घूम गया, जहां अब चचा भतीजी नहीं बल्कि एक महबूबा थी जो शायान के लाड कर रही थी। मैंने उन्हें वार्निंग दी थी कि अब मुझे सब सच पता चल गया है, लिहाजा वो उससे दूर रहें वरना अच्छा नहीं होगा। और मेरा इस कदर तेज लहजा देखकर वो हैरान रह गए थे। अब वो ये दलील नहीं दे सकते थे कि मैं गलत सोचती हूँ, क्योंकि मुझे सब सच पता चल गया था और मुझे ये भी मालूम हो गया था कि सारा शायान से शादी करना चाहती थी, लेकिन जेठानी के गोद लेने से उसकी मंसूबा बंदी पर पानी फिर गया। इसलिए वो मुझे इस बात का कसूरवार ठहराती थी और वो नहीं चाहती थी कि मेरे और शायान के दरमियान नज़दीकियां बढ़ें। वो हम दोनों के दरमियान दूरियां पैदा करना चाहती थी और इसके लिए उसने बहुत ही ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए थे। मैं जिस बात पर हैरान थी वो ये थी कि महज 14 साल की उम्र में वो ये सब कुछ कर रही थी और उसके घर वाले आंखें बंद किए उस पर भरोसा किए हुए थे। मैंने शायान के सोने के बाद उनका मोबाइल भी चेक करना ज़रूरी समझा और वहाँ से मुझे सबूत मिल गए थे कि सारा कसूर सारा का ही था। वो शायान को दिन रात फ़ोन और मैसेजेस करती रहती थी, लेकिन शायान सिर्फ ज़रूरी मैसेज और फ़ोन का ही जवाब देते थे। और शायान ऐसा क्यों करते थे, इस बात का जवाब भी मुझे उन्हीं मैसेजेस में मिल गया था। वो शायान को ब्लैकमेल करती थी। शायान से कम उम्री में ये गलती हो गई थी कि उन्होंने जेठानी के गोद लेने से पहले इससे इजहार मोहब्बत कर दिया था और इतनी छोटी उम्र में तो इंसान से गलतियां होती रहती हैं। इसी बात को बतंगड़ बनाकर वो शायान को ब्लैकमेल करती थी कि वो अपने अब्बू यानी जेठ को सब बता देगी कि किस तरह शायान ने उस पर गंदी नज़र रखी हुई थी। उसकी ब्लैकमेलिंग देखकर मेरा सर टकरा गया। अब मेरे पास एक ही रास्ता था और मैंने वही रास्ता चुनने का फैसला किया। मैंने सारे सबूत इकट्ठे किए और अपनी सास को सब कुछ बताने का फैसला कर लिया, क्योंकि जिस तरह उन्होंने मेरी शादी के वक्त जेठ जेठानी को अलग किया था तो उन्हें भी वजह सारा ही लगती थी।
اور مجھے پوری امید تھی کہ اگر میں انہیں یہ سب بتاؤں گی تو وہ اس معاملے میں میری ضرور مدد کریں گی۔ میں نے انہیں سارے ثبوت اکٹھے کر کے بتا دیے اور ان کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک 14 سال کی بچی بھی یہ سب کر سکتی ہے۔ ان کے بیٹے کو بلیک میل کرتی آ رہی تھی اور ابھی تک کر رہی تھی، اور اس کے والدین اس بات سے بے خبر تھے۔ میری ساس نے بھی ایک فیصلہ کیا اور میری جٹھانی کو فون ملایا اور انہیں گھر آنے کا کہا۔ خاص انہیں ہدایت کی کہ وہ سارا کو ساتھ نہیں لائیں۔ وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے تھے۔ ساری بات ان کے سامنے رکھ دی گئی۔ پہلے تو انہوں نے یقین ہی نہیں کیا، لیکن جب میں نے انہیں رات والا منظر بیان کیا تو ان کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ میں جانتی تھی کہ شایان کیوں خاموش تھے اور چپ چاپ کیوں بلیک میل ہو رہے تھے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ سارا انہیں یہ مشہور کر دے گی کہ سگے چچا بھتیجی کے ساتھ کیسا تعلق رکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کے سگے چچا نہیں تھے، اور یہ سب اس کی ایڈاپشن سے پہلے کی بات تھی، جسے سر پر سوار کر کے اس طرح بلیک میل کر کے شایان کو پہلے دن سے ہی رسوائی کے خوف سے ڈرا رہی تھی۔ میری ساس نے سارا کی فوراً شادی کرنے کا حکم دیا اور شادی کے بعد اسے یہاں کبھی بھی نہ آنے کا فیصلہ سنا دیا۔ سارا کو بات کا پتہ چلا تو اس نے فون ملا کر مجھے بہت کچھ سنایا، اور میں نے آخر میں اسے کہا تھا تو صرف یہ کہ شایان صرف میرا ہے۔ تمہاری بلیک میلنگ کا دور ختم ہوا، تمہارا سچ سب کے سامنے آ گیا ہے۔ اب تمہاری کوئی بھی گیم نہیں چل سکتی۔ اپنی شادی کی فکر کرو، پیا گھر جاؤ تاکہ ہمیں بھی سکون کا سانس لینے کا موقع مل سکے۔ یہ کہتے ہی میں نے کھٹاک سے فون رکھ دیا، اور اماں مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں ان کے پاس رہنے آئی تھی کیونکہ میری طبیعت خراب تھی۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ میرا امید سے ہونا تھا۔ انہوں نے مجھے شاباشی دی کہ میں نے انتہائی سمجھداری سے کام لے کر اپنا گھر بچا لیا اور اپنے شوہر پر شک کرنے سے بھی باز رہی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس میں زیادہ تر غلطی سارا کی ہی ہے، اور سارا سے زیادہ غلطی اس کے والدین کی تھی، جنہوں نے اتنی کم عمر بچی کو بھی قابو میں نہ رکھا۔ جیٹھانی نے اس کی شادی کر دی اور ایڈاپشن بھی واپس لے لی، یعنی انہوں نے اس کے اصل والدین کو واپس دے دیا۔ اب ویسے بھی انہیں اپنی بچی کی شادی کی فکر نہیں کرنی پڑی تھی، کیونکہ جیٹھ جیٹھانی نے اپنا فرض ادا کر کے انہیں ان کی بچی واپس لوٹا دی تھی، اور وہ واپس ہمارے ساتھ رہنے آ گئے تھے۔ ان دونوں کی اتنی بڑی قربانی دیکھ کر ہم دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم بھی ان کے لیے قربانی دیں گے، اور ہم نے اپنی پہلی اولاد کو انہی کی گود میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔